आज हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं आईजीसीएसई और ओ लेवल्स के। टॉपिकल पे अगर मैं बात करता हूँ सो ये नंबर एक टॉपिक है हमारे पास। नंबर्स, ये उस टॉपिक में आपको ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और मोस्ट ऑफ द टाइम ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर वन का पार्ट होते हैं, राइट? सो यू आर नॉट अलाउड टू यूज द कैलकुलेटर हियर. These are the latest papers. I'll tell you the years and the variant at the last. So start the question number one. Write down the num square number greater than 10. A square number. What are the square number? Square number means uh, the square numbers you can find out the square root of that number. Let's suppose we can find the square root of 1. You can find out the square root of 4, 9. So 9, 16, 25. So you have to write a square number greater than 10. So a square number greater than 10 is 16. Part B, an irrational number. अच्छा, irrational number क्या होते हैं? देखिए, एक चीज सिंपल सी आप याद कर लें कि the irrational numbers are those where you cannot find out the square root. Let's suppose under root 2 is the irrational number, under root 3, under root 5, under root 6. These are the irrational number. Okay, under root 7. It means that if you find out the square root of 2, square root of 3, square root of 5, so the answer would be in decimal. और डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आ रहे होंगे वो रिपीटेड नहीं होंगे, ना ही कोई पैटर्न फॉर्म हो रहा होगा. सो दीज आर द रीजन के दीज आर कॉल्ड इरेशनल नंबर. तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 बी में कोई सा भी इरेशनल नंबर लिखना है. सो यू कैन राइट एनी नंबर, राइट? अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, whatever you want. Question number 2. Write 200,000 and 17 in figures. 200,000, 200,000, 200 in 1,000 and 17, and the last two digit is the 17. Write 200,000 and 17 in figure. So this is the answer of question number 2. Question number 3. Insert one pair of bracket to make this calculation correct. वन पेयर ऑफ ब्रैकेट मतलब आपको एक ब्रैकेट पुट करना है इसमें. आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट द आंसर 9. लेट्स सी 7. इफ आई पुट द ब्रैकेट हियर, लेट्स सपोज अगर मैं ब्रैकेट यहाँ पर पुट करता हूँ here. So 7 minus, first you have to solve the bracket. 5 minus 3 is 2 and 7 minus 2 plus 4. So 7 minus 2 is 5 and 5 plus 4 is 9. Yes, this is the right answer. आप इसी तरीके से डिफरेंट डिजिट्स पे ब्रैकेट्स पुट करके चेक कर लेंगे एंड देन सॉल्व इट टू गेट द आंसर. लाइक 7 minus 5 पे भी आप यू कैन पुट योर ब्रैकेट हियर like this. So 7 minus 5 is 2, 2 minus 3 is -1. So ये सॉल्व होकर 9 नहीं आएगा. Okay, question number 4. Solve the equation. This is the linear equation. Why? Because the power of x is 1 here. So to solve the linear equation, just make the x as a subject. So I will bring 2x here. This is plus 2x. And 3 plus 2x is 5x. So 6 equals to 5x. Then आपको पता है the rule is 5. यहाँ पर हम divide कर देंगे. So x is equals to 5. 6 upon 5. Now question number 5. The side of an isosceles triangle are measured correct to the nearest millimeter. One side has a length of 8.2 and another has a length of 9.4. Find the largest possible value of the perimeter of this triangle. अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी का क्वेश्चन है. लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी. How to solve this? To find this you have to find the upper bound or the lower bound. आपको इसके अंदर upper bound या
लोअर बाउंड फाइंड आउट करनी होती है। तो अगर हम दोबारा क्वेश्चन रीड करते हैं, तो द साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। isosceles में आपको पता है there are two equal sides. The sides of an isosceles are measured correct to one nearest millimeter. One side has a length of 8.2 and another has a length of 9.2. Let's suppose 8.2 is this, so ये भी 8.2 होगी suppose, और this is 9.4. अच्छा, ऐसा भी possible हो सकता है कि हम instead of this we can also write this, ये 9.4 possible है and this is also 9.4, and what about this, this is 8.2. दिस ये भी पॉसिबल वे हो सकता है, क्योंकि उसने हमें ये नहीं बताया है कि कौन सी दो साइड जो है वो इक्वल है। अच्छा, फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द पैरामीटर। अच्छा देखिए, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द पैरामीटर का मतलब ये है यू हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम पैरामीटर। मैक्सिमम पैरामीटर इट मींस यू हैव टू टेक द बाउंड्रीज, लाइक अपर बाउंड मतलब मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है। सो अगर मैं इनको 8.2 लेता हूँ तो दो वैल्यूज 8.2 आएंगी जो कि लेस है, हमारे पास मैक्सिमम आंसर नहीं आएगा। सो 9.4 एंड 9.4, दिस वन एंड दिस वन, ये 9.4 9.4 पॉसिबल हो सकता है। वाई? बिकॉज अब जब मैं इसको अपर बाउंड फाइंड आउट करूंगा तो हमारे पास मैक्सिमम एरिया आएगा, ठीक है ना, मैक्सिमम सॉरी पैरामीटर आएगा। मैक्सिमम पैरामीटर के लिए आपको तीनों की अपर बाउंड चाहिए, बट ये 9.4 जो गिवन है मेरे पास 9.4 सेंटीमीटर नियरेस्ट मिलीमीटर, तो हमें इसको नियरेस्ट मिलीमीटर है, राइट। सो इसको चेंज करने के लिए यू हैव टू चेंज द यूनिट फर्स्ट। तो सेंटीमीटर को सबसे पहले आपको मिलीमीटर में चेंज करना होगा, इट वुड बी 94 मिलीमीटर, मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे इसे हम, और मिलीमीटर, राइट। और अपर बाउंड के लिए आपको पता है इफ देयर इज नथिंग हियर, सो देयर इज 1 हियर, यू हैव टू डिवाइड 1 बाय 2, दिस इज 0.5। सो आप इसके अंदर 0.5 ऐड करोगे फॉर द अपर बाउंड एंड 0.5 लेस करेंगे फॉर द लोअर बाउंड। सो हमारे पास ये आ जाएगा 94.5। अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ अपर बाउंड के लिए 94.5, और इसी तरीके से 8.2 को भी सॉल्व कर लेंगे। दिस इज 8.2 को मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें ताकि ये मिलीमीटर में आ जाए, और अपर बाउंड के लिए इसमें 0.5 ऐड कर देंगे तो इसकी बाउंड्री हो जाएगी 82.5, राइट। अच्छा जी, अब 82.5 अगर हमारे पास आ जाता है, सो अपर बाउंड के लिए आपको पता है पैरामीटर सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, ठीक है। सम ऑफ ऑल साइड्स के लिए हम इसको 94 प्लस 94 एंड प्लस 82.5, 94 सॉरी इट्स नॉट 94, ये हमारे पास अपर बाउंड इसकी 94.5 थी। सो 94.5 हम इसको सही कर लेते हैं, 94.5 प्लस 94.5, 94.5 प्लस 94.5 प्लस 82.5, इसको ऐड कर रहे थे विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। 94 एंड 94 448 188 188 एंड 189, सो 189 प्लस 82.5, so 0.59 or 211 16 17 and 1 to 71.5 millimeter. This is the upper bound of this. Okay, question number we got question number 5. Now question number 7 is write the recurring decimal 0.48 as a fraction as showing. Recurring decimal के लिए 0.48, you can see we have like these two करेंगे, इसका मतलब ये है कि ये आगे कंटिन्यू होगा, तो कोई नंबर ऐसा होगा जिसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.48 0.48 0.48 इसका आंसर आएगा, और ये रिकरिंग होगा, ये आगे कंटिन्यू होगा। ये इधर भी दो बार आपको गिवन है यहाँ पर, से ये दोनों नंबर्स रिपीटेड है। हाउ टू कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, वन रिमेंबर थिंग दैट जितने भी बार होंगे यू हैव टू राइट। अच्छा डेसिमल देखें, डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, टू नंबर्स, राइट, 48 हियर, सो 48
सो यू हैव टू राइट 2 डिजिट नंबर एट द इन द डिनोमिनेटर। और अच्छा कितने बार है ऊपर, 2 बार है हमारे पास, ठीक है। तो आप सिंपल इज दैट यू हैव टू राइट हर बार के लिए 1 9, एक 9 लगेगा, 9 and 9, ठीक है। और ये 48 है, जस्ट कॉपी 48 हियर। अगर रिड्यूस हो रही है एक टेबल के अंदर, सो जस्ट रिड्यूस दिस, 3 1 3 एंड या 3 के टेबल से रिड्यूस कर लेते हैं, 3 6 18 33। दिस इज द आंसर, 16/33। क्वेश्चन नंबर 10। जिस क्वेश्चन नंबर 10 में जस्ट कैलकुलेशन है, ओके, जस्ट यू कैन सॉल्व इट। आई थिंक दिस इज द sign of the division sign. This is division sign. Or let me check this. Yeah, sorry, this is the addition sign. Okay, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखें, 3 5 8 9 7 करेक्ट टू 4 डेसिमल 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, इसको तो मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। 3 5 8 9 7, राइट, करेक्ट टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, अभी आप चेक करें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 5। ये हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं, ठीक है। 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं अगर हमारे पास, सो इसको 4 में करना, इट मींस दैट एट द लास्ट, ये लास्ट वाले डिजिट को, द लास्ट वन, ये लास्ट वाले डिजिट को आपने जीरो करना है। और आपको पता है ये 7 है, अगर एक डिजिट को हम जीरो करते हैं, इफ दिस इज 5 और मोर देन 5, सो वी हैव टू ऐड 1 फॉर द beside द डिजिट। इसमें हम 9 में 1 ऐड करेंगे, सो इट वुड बी 3 5। वेट, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ। सो ये हमारे पास हो जाएगा 3 5। ये हम यहाँ से इसको स्टार्ट लेते हैं ना, लास्ट वाले से इसको हम जीरो बना देते हैं, द लास्ट वन। दिस इज जीरो, 1 add here, it would be 0 1 here, 9 5 and 3। अच्छा, अब अगर आपको दिख तो ये रहा होगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, बट समटाइम्स वी काउंट द जीरो। सो हम इस जीरो काउंट करेंगे, बट वी डोंट काउंट दिस जीरो, बट वी हैव टू राइट इट। सो ये हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द नंबर्स write down the square number. So 8 is not the square number. 9 is the square number because इसका square root निकलता है. Yes, 9 here. And 10 is not, 11 not, 12, 13, 14, 15, 16 का square root आता है. So these two are a prime number factor of 99. Okay, एक prime number हमें चाहिए और जो हो factor of 99. It means that वो 99 के टेबल में आता हो, ठीक है। A prime factor of 99, sorry, a prime factor of 99, this is a prime factor of 99। प्राइम फैक्टर्स हम इसके फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, प्राइम फैक्टर का मतलब ये है कि वो प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं और किसी और टेबल में नहीं आते, ठीक है ना। सो अगर मैं यहाँ पे एक नंबर देखूँ, 8 4 2 के टेबल में आता है, 9 भी आता है, 10 भी आता है, 12 है, 13, यस, 13 इज द प्राइम नंबर हियर, 11 इज द प्राइम नंबर हियर, और 14 इज नॉट, 15 इज नॉट। तो हमारे पास दो चॉइसेस हैं, 11 और 13, ठीक है। आप चेक कर लेते हैं 13 के टेबल में 39 आता है या नहीं आता। तो आप इसको डिवाइड करके चेक करेंगे तो 13 के टेबल में 39 नहीं आएगा, राइट। और यस, 11 के टेबल में आएगा, 11 9 आर 99, सो 11 इज द आंसर। अच्छा, नेक्स्ट वर्कशीट जो होगी इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं अपलोड कर दूंगा।